Hey guys, welcome to Believe Where Your Nichuji Body, dreaming, believing, and achieving together. So, here we are with a new video of ours in which we are going to discuss the frog chapter, like frog part of the structure and organization in animals chapter. So, let's start. So, the really first is frog belongs to class Amphibia and its phylum is Chordata. Basically, frog is called amphibians because they can live both on land as well as water. And the most common species that you will see in India is Rana tigrina. And क्योंकि इसकी काफ़ी species होती हैं तो the most common species is Rana tigrina, okay, that is found in India. And they don't have constant body temperature. Their temperature varies with the environment. वो जैसे जगह पे जाते हैं उनका temperature भी वैसा ही हो जाता है, okay. As well as they are cold-blooded, and cold-blooded animals are also known as poikilotherms that we are going to discuss in detail in animal kingdom, where we are going to uh, study about the various animals in class and animal kingdom, the warm-blooded, cold-blooded, and etc. And the most important as well as the most unique ability of the frog is the ability to change color to hide from enemies. That is called camouflaging, because यार उनको अपने प्रेडेटर का डिनर नहीं बनना, ना ही उनको अपने प्रेडेटर का सपर बनना है, एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा. सो दे नीड टू चेंज द कलर. जैसी जगह में जाएंगे वैसा सा कलर ले लेंगे, ठीक है, ताकि उनका जो प्रेडेटर है उन्हें पहचान ना सके. एंड दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज नोन एज मिमिक्री, ओके. एंड द नेक्स्ट इज समर स्लीप एस्टिवेशन एंड विंटर स्लीप इज़ नोन एज हाइबरनेशन. सो बेसिकली 3 to 4 मंथ्स में जब पीक समर या पीक विंटर्स होते हैं तो आपको कभी भी देख लेना, आपको घर में कभी भी लिजर्ड नहीं दिखेगी, ना ही कभी फ्रॉग दिखेगा, क्योंकि ये स्लीप पे चले जाते हैं, क्योंकि they cannot survive such peak weathers. So to protect themselves from these peak winters as well as peak summer, they take a sleep for like 3 to 6 months. like जब तक वो पीक गर्मियाँ पीक सर्दियाँ नहीं जाती तो वो अपने इस पीरियड के दौरान वो सो जाते हैं और एक डीप बरोज में शेल्टर ले लेते हैं. आप कभी भी देखो, हमें कभी भी मिलेगी नहीं यार अपने घर पे लिजर्ड्स, कभी भी नहीं मिलती, बिकॉज दे टेक ऐसी जगह पे जाके वो शेल्टर ले लेते हैं जहाँ पे मतलब उनका प्रेडेटर उन्हें मतलब पहचान ढूंढ ना पाए, वरना तो ऐसा ना हो कि वो यार सोते रह जाए और उनको पीछे से कोई खा जाए, ठीक है. तो इसीलिए these are important and they are as per the NCERT, okay. And the next is frog morphology, which is very important. And the कभी भी आप देखोगे कि जो फ्रॉग है उसकी स्किन काफ़ी स्मूथ सा स्लिपरी अजीब सी होती है. आई डोंट लाइक दैट टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्यों? क्योंकि उनकी स्किन में म्यूकस प्रेजेंट होता है, एंड म्यूकस इज बेसिकली पिगमेंट थिंग, काइंड ऑफ अ थिंग विच गिव्स देम स्लिपरी और स्मूथ टेक्सचर, ठीक है, जिससे उनकी स्किन ऐसी स्मूथ सी लगती है, ऐसे स्लिपरी सी एंड थोड़ी थोड़ी सी शाइनी सी भी लगे, इतनी भी नहीं. And the next is they have dorsal side as well as ventral side, ठीक है. Whenever we discuss a morphology or anatomy of an animal or or an insect or of amphibia, there are two sides that we need to discuss: dorsal and ventral, front and the mid side. तो dorsal side जो है उनकी olive green होती है with dark irregular spots, and the ventral side is uniformly pale yellow side, okay. And the next thing is that nictating membrane. What exactly is a nictating membrane? Whenever we go for us like swimming in a pool, we can never see under the water with our like naked eye. Like literally हमें वो गॉगल्स चाहिए होती हैं स्विमिंग वाली, तभी हमें क्लियरली दिखता है. हमें दिखता नहीं क्योंकि हमारे आँखों में कभी पानी चला जाता है, क्योंकि वो क्लियर नहीं होता है एटसेट्रा. तो इसीलिए हमें वो गॉगल्स चाहिए होते हैं. तो सेम निक्टेटिंग मेम्ब्रेन फॉर फ्रॉग्स, क्योंकि उनको काफ़ी अपने ऐसे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं दैट दे नीड टू कंटिन्यू इन द वाटर. सो दे हैव अ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स देयर आइज फ्रॉम द वाटर, कि उनको मतलब ऐसे पानी ना जाए एटसेट्रा. तो वो इसीलिए होता है. एंड द नेक्स्ट इज टिम्पैनम. उनके कभी भी आप देखोगे तो उनकी कान नहीं होते, दे डोंट हैव ईयर्स, दे हैव अ टिम्पैनम which helps in receiving the sound signals and hearing the noise of their predators or anything like coming from front, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज hind limbs and forelimbs. Hind limbs and forelimbs is like आप समझ लो कि दे सर्व एज द पैर एंड हाथ काइंड ऑफ थिंग, उनके लिए होते हैं. जैसे हम
ह्यूमन के पैर होते हैं, हाथ होते हैं, तो वो वैसे होते हैं। तो हाइंड लिम्स बेसिकली 5 डिजिट्स होते हैं एंड दे आर लार्जर एंड मस्कुलर देन द फोर लिम्स विच आर 4 डिजिट्स। फोर लिम्ब के 4 डिजिट्स होते हैं, हाइंड लिम्स के 5 डिजिट्स होते हैं। सो जिसके डिजिट्स ज़्यादा हैं वो ज़्यादा लार्जर एंड मस्कुलर होता है, ठीक है। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ मेल फ्रॉग्स और फीमेल फ्रॉग्स में डिस्टिंग्विश कैसे करें, लाइक हाउ विल यू लाइक आइडेंटिफाई कि फीमेल फ्रॉग कौन सा है, मेल फ्रॉग कौन सा है, हमें कैसे पता चलेगा। तो बेसिकली मेल फ्रॉग्स में वोकल सैक्स प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज अ कॉपुलेटरी पैड विच इज़ प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें हमें सबसे याद रखनी है मेल फ्रॉग वाली, जो लास्ट 7th पॉइंट है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये याद रखना है। एंड इवेंचुअली ये जो वोकल सैक और कॉपुलेटरी पैड है वो फीमेल फ्रॉग्स में एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये हमें हेल्प करता है मेल फ्रॉग एंड फीमेल फ्रॉग में आइडेंटिफाई करने का। एज वेल एज द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ फ्रॉग जो है दे एग्जिबिट सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। एंड नाउ हेयर वी हैव डिस्कस्ड द होल पॉइंटर्स एंड as well as the most important things, and whole NCERT was covered in this, to be very honest. And now you only need to read the NCERT once as well as see the frog diagram, ठीक है। तो आपको आ जाएगा। इसमें बहुत ही मैंने सिंपल क्या मतलब पॉइंटर्स लिख दिए हैं, सिंपल ये थे, ये ज़्यादा कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। एनाटमी इज़ अ लिटिल बिट आई कैन से कॉम्प्लेक्स बट नॉट मच, ठीक है। हम उसको और भी सिंप्लीफाई करके ले आएंगे एंड द सेकेंड वीडियो विल बी अपलोडेड टुमारो, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट वीडियो, तो ये 2 पार्ट्स में है ये, ताकि आराम से हो, क्योंकि एनाटमी पार्ट इज़ अ बिट लेंथी, as well as the notes of this video will be uploaded today in the description, so do check it out। as well as मैंने फ्रॉक के ऑलरेडी 3 पार्ट डाल चुकी हूँ पहले, तो वो शॉर्ट्स में चेक कर लेना इफ़ यू नीड टू रिकैप वंस। उसमें मैंने थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी डाले हैं, तो वो देख लेना, वो काफ़ी हेल्प करेंगे तुम्हें, ठीक है। एज वेल एज एक क्विज़ होगा कल की जब सेकेंड वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद, ओके। सो टिल देन कीप बिलीविंग एंड अचीविंग, ऑल द वेरी बेस्ट।